ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 9th ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਸੈਪਟੰਬਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਕੈਲਵਿਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੈਲਵਿਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਲੱਸ 273.15, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਵਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ? 100। ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 273.15, 100 ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 273.15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 373.15 ਕੈਲਵਿਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਫਸਟ ਆਇਰਨ, ਮਿਲਕ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਗੋਲਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨੈਲੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨੈਲੀ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਪਲਾਸਟਿਡ, ਗੋਲਗੀ ਐਪੈਰੇਟਸ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਏ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨੈਲੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੰਟੇਨਿੰਗ DNA ਇਜ਼। ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨੈਲੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਪਲਾਸਟਿਡ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਸੈਟ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟੂ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਏਅਰ। ਏਅਰ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਬੀ, ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਅਰ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਫਰੋਮ ਦ ਗਿਵਨ VT ਗ੍ਰਾਫ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਦ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰਡ ਫਰੋਮ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਦ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਨ ਅ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਫॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़ विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज़ दिस। न्यूटन के आप 3 लॉ पढ़े हैं, फस्ट सैकेंड ते थर्ड। तो ये स्टेटमेंट है वो थर्ड लॉ की है कि हरेक एक्शन का एक इक्वल ते अपोजिट रिएक्शन होंदा ते हमेशा वो 2 डिफरेंट बॉडीज़ ते लगदा है, ठीक है जी। हुण 9वां क्वेश्चन है अपना, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। पहला ऑप्शन है इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, सेकंड है इट्स स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, थर्ड है इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एलूमीनियम सल्फेट इज़। आप एलूमीनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला दसना है। तो देखो ये पहला आप सिंबल लिखते होंगे, एलूमीनियम का सिंबल AL, सल्फेट का SO4, ठीक है जी। SO4 ते की होंगे? 2 नैगेटिव चार्ज होंगे, एलूमीनियम ते 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे। इन्हां दे चार्जिस की आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला Al2SO4 थ्राइस, ठीक है जी। तो इसका राइट ऑप्शन की हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, हुण नैक्सट क्वेश्चन ते आओ 11वें क्वेश्चन ते, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आप याद करी हुई है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जी कॉन्सटेंट होंगी है वो कितनी होंगी है? 6.022 इंटू 10⁻23। हुण 12th क्वेश्चन है जी, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ 23U। यू लगाने आप यूनीफाइड मास के लिए यूनिट होंगे ये, ठीक है। द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज़। आप की कढ़ने ने? नंबर ऑफ मोल्स कढ़ने ने। नंबर ऑफ मोल्स नूं डिनोट किया जाता है स्मॉल n दे नाल। ते नंबर ऑफ मोल्स कढ़न का फॉर्मूला की होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपां नूं किन्ना हैगा? 46 सोडियम का, ठीक है। उहदा मोलर मास किन्ना हुंदा सोडियम का? एटॉमिक मास है 23। तो जो आप इनू की करांगे? कैंसल करांगे तो अपना आंसर की आ गया जी
क्वेश्चन नंबर अपना आंसर आ गया 2। तो नंबर ऑफ मोल्स किन्ने हो गए 2। 12th का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, हुण नैक्सट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, करैक्ट कैमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। ये भी सिमिलर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का आपां की लिखना है, कैमिकल फॉर्मूला लिखना है। कैल्शियम का सिंबल हुंदा Ca, क्लोरीन दे लई Cl हुंदा है, कैल्शियम ते +2 का चार्ज हुंदा है, क्लोरीन -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CaCl2 की है इसका कैमिकल फॉर्मूला। तो राइट ऑप्शन हो गया 13 का सी। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, 2 फ्रेंड्स रजनीश एंड ऋषभ वर टॉकिंग अबाउट सिम्बॉयसिस ऑफ सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स। रजनीश आस्क्ड ऋषभ व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट हुज डेफिशिएंसी इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज़ कॉल्ड ग्वाइटर। अपन पता है कि जो ग्वाइटर डिजीज़ है वो किहदी डेफिशिएंसी करके हुंदा है जी, आयोडीन की डेफिशिएंसी करके। तो आयोडीन का सिंबल की हुंदा है आई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन ऑब्जैक्ट वेज 12 न्यूटन वैन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कि जदों किसी ऑब्जैक्ट का वेट अर्थ से मेजर किया जाता है तो वो किन्ना जी 12 न्यूटन। वट वुड बी इट्स वेट वैन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। सरफेस तो की होएगा इसका वेट, इसका ऑप्शन है हाँ जी वट वुड बी इट्स। आपां किसी ऑब्जैक्ट का वेट कहते अर्थ के सरफेस से किन्ना 12 न्यूटन। आपां किते दसना है सरफेस ऑफ मून ते दसना है। तो आपां नूं पता है कि वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून किहदे बराबर हुंदा है 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। अर्थ ते जिन्ना वेट है वह 1/6 किते होगा मून ते। तो अर्थ ते किन्ना है जी 12 न्यूटन। 12 न्यूटन का 1/6 करांगे तो कितना आ गया 2। तो मून ते कितना एक्सपीरियंस होगा आपां नूं 2 न्यूटन। इसका राइट ऑप्शन हो गया जी ऑप्शन बी। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सप्रैशन टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज़। एक्सप्रैशन दसना है ग्रेविटेशनल फोर्स का जोड़ा 2 बॉडीज़ के विच लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 17th क्वेश्चन है अपना, हू गेव द यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनीवर्सल लॉ किहदे द्वारा दिता गया सीगा? गैलीलियो द्वारा, सर इजाक न्यूटन द्वारा, नील्स बोहर, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है सर इजाक न्यूटन। ठीक है जी, 18th क्वेश्चन है, अ गर्ल इज़ वर्लिंग अ स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग विच फोर्स कीप्स अ स्टोन टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन वैन एक्सलरेटेड इज़। फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकेंड है जी मैगनेटिक फोर्स, थर्ड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 8D है तो फोर्स ऑफ ग्रैविटी। तो इसका राइट ऑप्शन अपन पता की होएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर 19, नेम द प्रिंसीपल यूज्ड टू डिज़ाइन शिप्स एंड सबमराइन्स। शिप्स ते सबमराइन्स नूं डिज़ाइन करन लगे किस प्रिंसीपल का यूज़ किया जाता है? पहला ऑप्शन है आर्कीमिडीज प्रिंसीपल, सैकेंड ऑप्शन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थर्ड है इनवर्स स्केयर लॉ, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है आर्कीमिडीज प्रिंसीपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसड एन अपवर्ड फोर्स व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। दिस फोर्स इज कॉल्ड डैश, ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन, बायएंट फोर्स, डेंसिटी। तो इसका राइट ऑप्शन अपन पता की है बायएंट फोर्स। कि जेकर आप किसी ऑब्जैक्ट नूं की करते हैं पानी दे विच इमर्स करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा किहड़ी फोर्स लगती है? अपवर्ड फोर्स लगती है। उस फोर्स का नाम होंगे जी बायएंट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स विच इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। इसके ऑप्शंस ने एपिकल मेरिस्टेम, बी है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, डी सी लेटरल मेरिस्टेम, तो डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ए एपिकल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गन, सिस्टम। तो इसका राइट ऑप्शन है बी टिश्यू। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू दैट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अजिहे टिश्यू का नाम दसना जोड़ा प्लांट्स के की है वाटर की कंडक्शन के हैल्प करता है। इसके ऑप्शंस ने, पहला है जी फ्लोएम टिश्यू, सैकेंड है पैरेनकाइमा, सी कॉलेनकाइमा, डी जाइलम। तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता ही है कि होएगा जाइलम टिश्यू। 24th है, ब्लड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टिश्यू। ब्लड किहड़े टिश्यू की एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर है सी कनैक्टिव टिश्यू।
क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन इज़ नॉट फाउंड इन फ्लोएम टिशू। हेठ लिखियां दे विचों कहंदे किहड़ा फ्लोएम टिशू दे विच नहीं पाया जाता। ठीक है, फ्लोएम पैरेनकाइमा, साइव ट्यूब्स, वैसल्स, डी कंपेनियन सेल्स। तो इज द राइट ऑप्शन है सी, वैसल्स। क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, आइडेंटिफाई दिस। आ थोनों डायग्राम दी हुई है तो कहा गया भी ये स्ट्रक्चरल तो फंक्शनल यूनिट है अपने नर्वस सिस्टम का। की नाम है इसका? तो इसका नाम है जी न्यूरोन। ए ऑप्शन इज़ द राइट। ठीक है, उस तो बाद देखो 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कोल्ड ब्लड एनीमल। इन्हां दे विचों किहड़ा कोल्ड ब्लड एनीमल है? ऑप्शन ए पीजन, बी स्नेक, सी कैट, डी बैट। तो इज़ द राइट ऑप्शन है बी, स्नेक। ठीक है, 28 विच फाइलम ऑफ किंगडम एनीमेलिया हैज़ द मैक्सीमम नंबर ऑफ स्पीसीज। तो अपन पता मैक्सीमम नंबर ऑफ स्पीसीज कितनियां होंदियां ने? एंथ्रोपोडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैमल। इन्हां दे विचों किहड़ा मैमल नहीं है? रैट, कैट, बैट, क्रोकोडाइल। तो इज़ द राइट ऑप्शन की हो जाएगा? क्रोकोडाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइकोट प्लांट। ऑप्शन ए है जी मेज़, ऑप्शन बी बीट, ऑप्शन सी पीज़, ऑप्शन डी राइस। तो पीज़ की एग्जाम्पल है इन्हां चों डाइकोट प्लांट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन एटॉमिक मास कितना हुंदा है? ऑप्शन सी इज़ द राइट, दैट इज़ 12। 32 क्वेश्चन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 kg, व्हाट इज़ इट्स वेट ऑन अर्थ। कहते जिहड़ा अर्थ का सॉरी ऑब्जैक्ट का मास है वो किन्ना है? 10 kg है। तो आपां की दसना है? ठीक है, आपां की दसना जी? आपां उसका वेट दसना है। तो आपां नूं पता है वेट का फॉर्मूला की हुंदा है? मास इंटू ग्रैविटी। मास किन्ना अपने कोल 10 kg, ग्रैविटी की वैल्यू हुंदी है 9.8। मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ गया? 98। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया जी ऑप्शन ए, 98 न्यूटन। उस तो बाद अपना क्वेश्चन नंबर 33, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलीमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ जिंक। जिंक की वैलेंसी दसनी है। जिंक की वैलेंसी हुंदी है 2। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन अ बॉडी इज़ इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसिस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्पर्स्ड। हू डिस्कवर्ड दिस प्रिंसीपल। कहते जो किसी बॉडी नूं फुली ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵੇਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਿਊਟਨ ਨੇ, ਐਂਪੀਅਰ ਨੇ, ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਨੇ, ਓਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੀ, ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੇਮ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? H2O। ठीक है, तो वाटर के किहड़े एलीमेंट प्रेजेंट है? हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स ये तुहाडी 9th की आंसर की सी। आई होप तुहाडे सारे डाउट्स इस आंसर की तो बाद क्लीयर हो जाएंगे। थैंक यू।